Students, hope you're fine. Today we are going to solve the linear programming problem through graphical method. Graphical method. In graphical method, like I have discussed in the previous lecture, first we have to take the problem and we have to formulate the linear programming model. First, formulating the solution. I have already discussed the question in the previous lecture with you, but still in this lecture I am going to formulate it again and then we will solve that. I will read question. The question is like this. A firm is engaging in production of products A and B. Each unit of A requires 2 kg of raw material and 4 labor hours for processing. For example, we have to produce the two products. Product A and B, and given information is that each unit of A requires 2 kg of raw materials and 4 labor hours. A requires 2 kg of raw materials and 4 labor hours. That means this is raw material constant and this is labor hours, LH. I will like it. Then what we need to do, and whereas each unit of B requires 3 kg of raw materials and 3 hours of labor. That means 2 kg of raw material. It requires 3 kg of raw material and 3 hours of labor. And given in the question is that the firm has got 60 kg of raw materials and 96 labor hours. That means we have got here 60 kg total available and 96 is total available. And 1 unit of product A sold for rupees 40 and 1 unit of product B sold for rupees 35. That means if we'll sell these products, we are going to make profit of rupees 40 from A and profit of rupees 35 from B. So इस प्रॉब्लम को हम फॉर्मुलेट करेंगे और फॉर्मुलेशन के बाद हम इसको ग्राफिकल मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे. नाउ लाइक मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. दिस इज मैक्सिमाइजेशन बिकॉज वी हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. दैट मींस दिस इज मैक्सिमाइजेशन केस. दिस इज maximize our profit is represented by Z. This is our objective function. Z will be equal to 40. That means we are going to produce X1 products of the quantity which we are going to produce, which we need to find X1 and X2. These are the decision variables which we need to find out. A, that means we have got 40 X1 plus 35 X2. This is our objective फंक्शन. सो ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है. 40 हमें दे रहा है एक यूनिट ऑफ ए, वाइल एज 35 हमें दे रहा है एक यूनिट ऑफ बी, और हमें देखना है X1 और X2 कितना हमें प्रोड्यूस करना है. दैट मीन्स आवर डिसीजन वेरिएबल्स आर X1 एंड X2. यही हमें फाइंड करना है कितना हमें लास्ट में निकालना है X1 और X2 गिवन द कांस्टेंट. दैट मीन्स सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स. Which constant? Raw material constant and labor hour constant. First constant is raw material constant. We can write it like this. That means 2 times 2 into X1 plus 3 into X2 should not be greater than 60. हमारे पास available quantity है 60. Raw material 60 kg है हमारे पास. That means जो भी हम combination of X1 और X2 की लेंगे वो 60 से ज्यादा नहीं बनना चाहिए. That means हमारा constant यहाँ पे क्या बनेगा? Twice X1 plus 3 times X2 should always be either equal to 60 or less than, not more than, because we have got this kind is a limitation that we cannot use more than 60 kg of raw materials, but we can use less, not more. That means we can write this should be less or equal to 60, and we call this is raw material constant. Raw material constant. Then we have got next constant, that is labor hour constant. How much time we have got available? That is 96. And 1 unit of X requires 4. That means
4 times x1 plus 3 times x2 should be less or equal to 96, and we call this as labor or constant. And last constant, as you know, that is last constant is simply what we call that as non-negativity constant. How we write the non-negativity constant? That is x1 comma x2 should be either equal to 0 or greater than 0, because either we are going to produce something or nothing. We cannot go in the negative direction. That's why x1 and x2 should be either 0 or positive. This is the formulation of our problem, and after the formulation we are going to solve this through graphical method. These constants here. Now we are going to solve this through the graphical method. Graphical method में हमें करना क्या है? ये जो हमारे दो constants हैं, ये वाला और ये वाला constant. As per these constants हम lines ड्रा करेंगे, because the linear program हम linear programming के थ्रू इसको solving, that means हमें एक straight line आएगी. So हम इसको निकालेंगे coordinates of this constant and coordinates of this constant. फिर इसके बाद हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे. For example, हमारे पास पहला constant है, that means twice x1 plus thrice x2 is less or equal to 60. इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा हम यूज कर सकते हैं 60 kg. 60 kg से कम भी कर सकते हैं यूज, लेकिन 60 से ज्यादा नहीं जा सकते. दैट मीन्स मैक्सिमम जो हमारी लाइन बनेगी, ठीक है, जो हमारा ग्राफ बनेगा वो मैक्सिमम टच करेगा 60 को, ठीक है. दैट विल ऑलवेज टच टू 60. अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसका लाइन, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल विल टेक इट सिंपली लाइक दिस. That means at the highest level we can do twice x1 plus thrice x2 is equal to 60. Now how to find the coordinates? Let x1 equal to 0. For example हम let करेंगे x1 equal to 0. अगर x1 equal to 0, that means 2 into 0 plus thrice x2 should be equal to 60. That means thrice x2 should be equal to 60 and x2 should be equal to 60 divided by 2, and that will come equal to equal to 30. Now जब हमने ये किया, फिर इसके बाद फिर से हम करेंगे. इसके बाद let now x1 x2 equal to 0. इसी वाले में x2 हम 0 करेंगे, इस वाले फंक्शन में. फिर क्या होगा? उससे क्या होगा? दैट मीन्स twice x1 प्लस thrice x2 अब हमने लिया 0 के बराबर, इंटू 0 विल बी इक्वल टू 60. नाउ इसके बाद क्या करना है? twice x1 प्लस 0 विल बी इक्वल टू 60. दैट मीन्स x1 will be equal to 60 divided by 2. Here we have to do it 60 divided by 3. This is, this will be equal to 60 divided by 3. That will be equal to 20, and here will be equal to 30. Now इन coordinates को हम लिखेंगे. कैसे लिखूंगा coordinates को? For example, ये मैंने ये जो प्रोसेस की है इसको मुझे नीचे लिखना है. मैंने क्या किया? सिंपली अगर मैं coordinates लिखूंगा ग्राफ के, मेरे ग्राफ के coordinates क्या आएंगे? सिंपल, जैसे मैंने पहले x1 x2, पहले मैंने x1 को 0 लिया, जैसे इस वाले में मैंने x1 को 0 लिया, तो मेरा x2 निकला इसके बराबर 20 के बराबर. फिर नेक्स्ट टाइम मैंने x2 को 0 के बराबर लिया, इसको 0 के बराबर लिया, तो उस वक्त मेरा x1 निकला इक्वल टू 30. इसके बाद मुझे क्या करना है? मुझे इसमें ग्राफ ड्रा करना है. ग्राफ में कैसे ड्रा करूंगा? ऐसे प्लेन में, इट्स 2 डायमेंशनल ग्राफ सिंपली है. इसमें x1 और x2 को मैं प्लॉट करूंगा. जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कोऑर्डिनेट, फॉर एग्जांपल फ्रॉम 0 5 10 15 20, तो x1 के मैंने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखे, यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट्स x2 के लिखे 5 10 15 20 एंड 25 to 30. अब मुझे इनको ड्रॉ करना है. फॉर एग्जाम्पल जब मेरा x1, ठीक है, जिस टाइम मेरा x1 इक्वल टू किसके बराबर है? 0 के बराबर. जब मेरा x1 है 0 के बराबर, उस वक्त मेरा x2 किसके बराबर है? 20 के बराबर. पहले वाले में
पहले वाले में, जैसे मैंने पहले यहाँ पे दिखाया, व्हेन x1 इज इक्वल टू 0, x2 मेरा किसके बराबर निकला उस वक्त 20 के बराबर। व्हेन x1 इज 0, x2 इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पे मैं मार्क डालूंगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, व्हेन माई x2 इज इक्वल टू 0, उस वक्त x1 किसके बराबर है 30 के बराबर। जब x2 इज 0, तो ये किसके बराबर है 30 के बराबर, यहाँ पे मार्क करूंगा। अब इसके बाद क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है इनके बीच में। तो एक ग्राफ आपका प्लॉट हो गया। और इस लाइन को अगर मैं लिखूंगा, दिस कौन सी कांस्टेंट लाइन है, फॉर एग्जांपल इसको मैं लिखूं, दिस इज ट्वाइस x1 प्लस 3 टाइम्स x2, ट्वाइस x1 प्लस 3 टाइम्स x2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, इस लाइन पे 60, बिकॉज ये 60 के बराबर है ये वाली लाइन, और लेस देन 60 यहां से है, ये इस लाइन के बाहर है, दिस इज ग्रेटर देन 60, जो मेरा कंसर्नड एरिया नहीं है। मेरा कंसर्नड एरिया एक तो ये लाइन और लाइन से नीचे वाला एरिया, बिकॉज मेरा कांस्टेंट इज लेस और इक्वल टू 60, दैट्स व्हाई मैं उससे कंसर्नड हूं। अब मैं नेक्स्ट लाइन ड्रा करूंगा। नेक्स्ट लाइन ड्रा कैसे करूंगा, रॉ मटेरियल कांस्टेंट, उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल कांस्टेंट को पहले देखना है, उसके कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या निकलेंगे। रॉ मटेरियल कांस्टेंट के लिए फिर से निकालूंगा, फॉर एग्जांपल मेरा 4 टाइम्स x1 प्लस 3 टाइम्स x2 शुड बी लेस और इक्वल टू 96। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको भी मुझे लेना है बराबर इक्वल टू 96, बिकॉज 96 से ज्यादा तो मैं नहीं जा सकता हूं। सो इस वक्त भी फिर से लेट x1 इक्वल टू 0। ठीक है, जब x1 इक्वल टू 0 में लूंगा, दैट टाइम 4 इंटू 0 विल बी 3 प्लस thrice x2 will be equal to 96. That means thrice x2 will be equal to 96. x2 will be equal to 96 divided by 3. And 96 divided by 3 जब हम निकालेंगे, that will be equal to, I guess that will be equal to 96 divided by 3. That will be equal to 333. And 90 plus 2, it will be 32. ओके, इसके बाद क्या करना है, यहां पे मैंने रॉ मटेरियल कांस्टेंट की कोऑर्डिनेट्स निकाले। अब मैं निकालूंगा लेबर आर, लेबर आर कांस्टेंट का भी मैं प्लॉट करूंगा। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी मैं निकालूंगा, उसके कोऑर्डिनेट्स x1 और x2। जब मैंने x1 को 0 लिया, उस वक्त मेरा x2 किसके बराबर निकला 32। लेट डू अगेन, लेट x2 इक्वल टू 0। जब x2 इक्वल टू 0 होगा, तो मेरा ये फंक्शन कैसे बन जाएगा, ये फंक्शन क्या बनेगा, 4 टाइम्स x1 प्लस 3 इंटू 0 विल बी इक्वल टू 96। दैट मीन्स 4 टाइम्स x1 will be equal to 96, x1 will be equal to 96 divided by 4, and 96 divided by 4 जब हम करेंगे, that will be equal to 20, that will be equal to 24। ठीक, दैट मीन्स यहां पे मुझे लिखना है x2 जब मैं 0 लूंगा, तो उस वक्त 24 के बराबर मेरा x1 उस वक्त आ जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकले। अब मैं इस वाली लाइन को भी यहाँ पे ड्रा करूंगा। कैसे ड्रा करूंगा, सिंपली x1 को पहले 0 लूंगा। ठीक है, यहाँ से 0 है। ठीक, इसके बाद दैट x2 32 के बराबर। अगर ये 30 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये रब करूंगा। अगर मेरा यहाँ पे ये ग्राफ है 30 तक मैंने लिया, दैट मीन्स दिस इज 30, यहाँ पे 35, दैट मीन्स 32 यहाँ के कहीं पे आ रहा है 32। ये मेरा किसके बराबर है 32। नाउ इसके बाद क्या करना है मुझे, x2 को जब मैं 0 लेता हूँ, यहां से मैं 0 लूंगा, तो उस वक्त x1 24 बन जाता है। 25 यहाँ पे है, तो दिस विल बी 24। ठीक है, अब इन दो पॉइंट्स को मुझे मिलाना है। जब मैंने अब इन दो पॉइंट्स को मिलाया, तो मेरा ये लाइन आ गया। तो ये वाली लाइन जो है, दिस इज इक्वल टू, ये वाली लाइन को अगर मैं कहूंगा ये क्या है, दिस इज 4 टाइम्स x1 प्लस 3 टाइम्स x2 इक्वल टू 96। दैट मीन्स इस लाइन के ऊपर 96 से ज्यादा है, और इस लाइन पे एग्जैक्टली ये किसके बराबर है 96 के बराबर। नाउ लेकिन मेरा कांस्टेंट, जैसे मैंने पहले कहा, हमारा कांस्टेंट 4 टाइम्स x1 प्लस 3 टाइम्स x2 इज लेस और इक्वल टू 96। दैट मींस मेरा नीचे वाला पोर्शन जो है वही मेरा फेवरेबल पोर्शन है। अब दो लाइंस में से
पहली लाइन और सेकंड लाइन में जो मेरा नीचे वाला पोर्शन है वो मेरा फेवरेबल पोर्शन है। पहले कांस्टेंट ने मुझे दिखाया ये वाला पोर्शन फेवरेबल है इंक्लूडिंग दिस नॉच, ठीक। इसके बाद मेरा सेकंड कांस्टेंट दिखाता है कि ये वाला सारा पोर्शन आपके मेरे लिए फीजिबल है इंक्लूडिंग दिस ऑल। नाउ कॉन्स्टेंट्स बोथ मेट होने चाहिए टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए दोनों कॉन्स्टेंट्स अचीव होने चाहिए, नहीं फुलफिल होने चाहिए। अब वो वाला एरिया मुझे इसमें से फाइंड आउट करना है जो बोथ लाइन्स के नीचे आता है। अब उस वाले एरिया को थोड़ा सा मैं शेयर करूंगा जो इन बोथ लाइन्स के नीचे आता है। इस लाइन के नीचे तो यहां तक सारा आता है। अब लेकिन ये वाला पोर्शन कट हो जाता है, ये वाला पोर्शन खाली आता है। ये वाला पोर्शन जो मैंने शेडेड पोर्शन किया, इस वाले पोर्शन को मैं अब बोलता हूं फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन अगर मैं इसको नाम दूंगा, दिस इज यहां पे तो ओ है, ठीक है। यहां पे इसको लिखूंगा ए, यहां पे इसको लिखूंगा बी और इसको लिखूंगा सी। दैट मीन्स फीजिबल रीजन ओ ए बी सी है। मेरा फीजिबल रीजन जो इसमें है ओ ए बी सी। दैट मीन्स मेरा सोल्यूशन खाली आ सकता है इसी रीजन में, 0 ए बी और सी। इस वाले शेडेड रीजन में मैं अपना मतलब सोल्यूशन निकाल सकता हूं। अब ये सोल्यूशन मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? अब मुझे सोल्यूशन निकालना है। यहां तक तो मैंने ग्राफ ड्रा किया, अब ग्राफिकल मेथड के थ्रू मैं सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करूंगा? सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो मेरा यहाँ पे, अगर आप देखोगे मेरा एक पॉलीगन यहाँ पे बना जो इस शेप का है, ठीक है। नाउ अब मैं दिखाऊं, ये तो ऐसे शेप का बना। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा बनाने की। इस शेप का मेरा पॉलीगन बना। दिस इज ओ ए बी एंड सी। इस वाले फिगर में अगर मुझे देखना होगा कि मेरा सॉल्यूशन कहां पे निकलेगा, अगर मुझे देखना होगा कि मेरा जो रिजल्ट है, जो मेरा अल्टीमेटली जो मेरा सॉल्यूशन होगा वो कहां पे आ सकता है, ये मेरा सारा फीजिबल रीजन है। कहीं पे भी मेरा सॉल्यूशन इसमें से, इस रीजन में से निकल सकता है। सॉल्यूशन मींस x1 और x2 का वैल्यू मुझे कहीं से निकल सकता है, लेकिन मुझे निकालना है हाईएस्ट फीजिबल रीजन में से हाईएस्ट। फीजिबल रीजन में से फिर हम देखते हैं ऑप्टिमल रिजल्ट्स क्या है। ऑप्टिमाइजेशन मींस हमें मैक्सिमाइज, इस वक्त हमारा ऑप्टिमाइजेशन, दैट मींस हमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट को करना है। तो मैक्सिमम सॉल्यूशन, मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x1 और x2 निकलना चाहिए विद इन दीज कॉन्स्टेंट्स। सो इसके लिए मैं कहीं पे भी अगर मैं देखूंगा इस वाले फिगर को, अगर मैं दिस से वी कैन से दिस इज सिंपली, इसको हम कहेंगे जिससे कन्वेक्स, मतलब वी कैन से कन्वेक्स सेट है। ये एक कन्वेक्स सेट मींस, कन्वेक्स सेट का मतलब क्या है? अगर मैं इस लाइन में, इस वाले पोर्शन में से कहीं पे भी दो पॉइंट ड्रा करूंगा, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, स्ट्रेट लाइन में इनके थ्रू में ड्रा कर सकता हूं। कोई भी पोर्शन, इवन बी को सिलेक्ट करूंगा, ए को तो लाइन के थ्रू स्ट्रेट लाइन आ सकती है, या ए को सिलेक्ट करूंगा सी, तो विद इन दिस फीजिबल रीजन में कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकता हूं। लेकिन अब मसला क्या है कि और एक टाइप का सेट यहां पे मैं बनाऊंगा जिसको हम बोलते हैं कनकेव, नॉट कन्वेक्स सेट। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कोई सेट बनाऊंगा, यहां पे मेरा कोई सेट ऐसा है, मेरा कोई फिगर ऐसा आया। अगर इस फिगर को मैं कहूंगा दिस इज नॉन कॉन्वेक्स फिगर, इस नॉन कॉन्वेक्स फिगर में प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं यहाँ पे एक लाइन पॉइंट डालूंगा, यहाँ पे इनके बीच में स्ट्रेट लाइन पॉसिबल नहीं है। सो हमारा फीजिबल रीजन यहाँ पे क्या आ रहा है? दैट इज कॉन्वेक्स, दिस इज कॉन्वेक्स सेट। और विद इन द कॉन्वेक्स सेट हमारा जो सोल्यूशन आता है, जो हमारा मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम जो मेरा आएगा, दैट विल बी ऑलवेज ऑन दीज पॉइंट्स, ऑन दीज एजेस। इन पॉइंट्स पे वो आ सकता है। वो हम कैसे निकालेंगे? जैसे आपने इकोनॉमिक्स में देखा होगा, हम इस लाइन के थ्रू जो मेरा फीजिबल रीजन है, ठीक है, इस फीजिबल रीजन में आइसो प्रॉफिट लाइन्स डालूंगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है। आइसो प्रॉफिट लाइन्स डालूंगा। आइसो प्रॉफिट लाइन्स ऐसी लाइन्स होती है जिस लाइन के हर किसी पॉइंट पे प्रॉफिट सेम आता है। ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे अब मुझे देखना है, अब मुझे यहाँ पे देखना, मैंने एक कॉन्वेक्स सेट यहाँ पे बना दी। इस कॉन्वेक्स सेट जो मेरी फिगर है, इस कॉन्वेक्स सेट में मुझे अब आइसो प्रॉफिट डालने हैं, आइसो प्रॉफिट लाइन्स डालने हैं। लेकिन उतना उससे बेहतर है कि हम एक कॉन्वेक्स सेट के एक्सट्रीम पॉइंट्स पे देखेंगे। इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन से? यहाँ हम कहेंगे टचिंग पॉइंट्स कौन है? 0,
ए बी एंड सी, इन्हीं 4 पॉइंट्स में हम इसकी सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। हम देखेंगे कि वेदर हमें इन 4 पॉइंट्स में से कहां पे हमारा बेस्ट सोल्यूशन हमें निकलता है, और वो सोल्यूशन निकालने के लिए हम ऐसे करते हैं सिंपल। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आई विल ड्रा है टेबल, उस टेबल के थ्रू मैं इसको सॉल्व करूंगा। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, हम पॉइंट्स यहां पे लिखेंगे, मेरा कौन कौन सा पॉइंट्स है, कॉन्वेक्स सेट में मेरे पॉइंट्स कौन कौन से आए। फॉर मेरा ओ ए बी एंड सी, इन 4 पॉइंट्स पे मैं इसका सोल्यूशन निकालूंगा कि कहां पे मेरा सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन मुझे कहां पे निकलेगा। और मुझे निकालना क्या है, डिसीजन वेरिएबल x1 और x2, यही तो मुझे फाइंड करना है, x1 और x2। लेकिन मुझे यहां से मैं क्या लिखूंगा, मैं अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मेरा z इज इक्वल टू 40 टाइम्स x1 प्लस 30 प्लस 35 टाइम्स x2। दैट मीन्स मेरा यही हाईएस्ट आना चाहिए, जिस पॉइंट पे, इन 4 पॉइंट्स पे जहां पे मेरा z हाईएस्ट होगा, बिकॉज दिस इज मैक्सिमाइजेशन केस, तो वही मेरा फिजिबल सॉल्यूशन होगा। अब वो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए सिंपली फॉर एग्जाम्पल मैं पॉइंट, आई विल कंसिडर पॉइंट 0 पे अगर आप देखोगे x1 भी 0 के बराबर और x2 भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और मेरा प्रॉफिट जब x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज 0, तो मेरा प्रॉफिट यहाँ पे 0 होगा, कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन वी विल मूव टू पॉइंट ए पे जब मैं जाऊंगा, पॉइंट ए पे मेरा x1 उस वक्त 0 है, x1 है 0, वाइल एज x2 उस वक्त मेरा किसके बराबर है, 20 के बराबर। जब x2 इज इक्वल टू 20, जरा इसको निकालते हैं, z विल बी इक्वल टू 40 इंटू 0 प्लस 35 इंटू 20, ये तो 0 बन जाएगी ये वाली टर्म। 35 इंटू 20 जब मैं लिखूंगा, दैट विल बी इक्वल टू 700। तो मेरा प्रॉफिट किसके बराबर निकलेगा, यहाँ पे 700 के बराबर। ठीक है, अब पॉइंट बी पे, अब मैं पॉइंट सी पे फॉर एग्जांपल पहले जाऊंगा। पॉइंट सी पे जब मैं पॉइंट सी पे मैं देखूंगा, उस वक्त x2 मेरा उस वक्त किसके बराबर है, 0 के बराबर। x2 विल बी इक्वल टू 0, लेकिन उस x1 वहां पे किसके बराबर है, 24 के बराबर है। ठीक है, नाउ जरा यहां पे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 40 इंटू 24 प्लस 35 इंटू 0, दैट विल बी इक्वल टू, अगर आप देखोगे 960 वो आ जाएगा। लेकिन अब मुझे पॉइंट बी पे निकालना है, पॉइंट बी पे मैं प्रॉफिट्स देखूंगा, वहां पे कितने प्रॉफिट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको निकालने के लिए 2 तरीके हैं। ग्राफिकल मेथड से जब आप ग्राफ शीट पे डालोगे तो वहां पे इजीली निकलेगा, लेकिन ग्राफ शीट अगर नहीं है तो उसके बावजूद भी आप इसको निकाल सकते हो। कैसे निकालूंगा, बी पे आई नो, यहां पे मैं कैसे निकालूंगा इसको, मैं यहां पे परपेंडिकुलर डालूंगा इस वाली लाइन पे, और इस वाली लाइन पे भी परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा। ये कहीं यहां पे टच करेगा इसको, और यहां पे टच करेगा। जब मेरा एग्जैक्ट ग्राफ शीट पे जब मैं निकालूंगा तो मुझे x1 का भी 0 मतलब सॉरी वैल्यू निकलेगा, और x2 का भी वैल्यू मुझे यहां से निकल सकता है। लेकिन यहाँ पे तो एज सच ओपन आई से मैं तो नहीं देख सकता हूं, तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा वो मैं एक दिखाऊंगा, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा यहाँ पे मेरा थोड़ा सा जगह है, यहीं पे मैं लिखूंगा बी पे। अगर आप देखोगे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट करती है, जब ये 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करती है, दैट मीन्स ये दोनों लाइन्स को मैं लिखूंगा, कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करती है, ट्वाइस x1 प्लस 3 टाइम्स x2 इज इक्वल टू 60। ठीक है, और कौन सी लाइन कर रही है इंटरसेक्ट, 4 टाइम्स x1 प्लस 3 टाइम्स x2 इज इक्वल टू 96। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, ये 2 इक्वेशन, ये 2 लाइन्स जो है ये यहां पे इंटरसेक्ट करती है। नाउ करना क्या है, सिंपली लेट अस सी आपस में इनमें डिफरेंस। फॉर एग्जांपल हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, फर्स्ट से हम सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्शन जब मैं करूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा वो मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मेरा रिजल्ट ऐसे आएगा, दैट मीन्स इस वाले से मुझे ये वाली लाइन सब्ट्रैक्ट करनी है। दैट मीन्स मैं फिर से
सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करूंगा, वो मेरा किसके बराबर आएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल दैट विल बी 4 times x1 plus 3 times x2 will be equal to 96 और माइनस ट्वाइस x1 प्लस ये किसके बराबर है, ये प्लस नहीं, ये तो माइनस आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 3 times x2 विल बी इक्वल टू माइनस 16। ठीक है, अब इन दो के बीच में माइनस जब करूंगा दे विल बी, ये तो एक दो तो कट हो जाएंगे, 2 times x1 विल बी, ये तो ये और ये कैंसिल हो जाए, विल बी इक्वल टू 96 माइनस 60 दैट इज 60 दैट इज 936। x1 आएगा इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 18। दैट मीन्स मेरा x2 जो है दैट विल बी सॉरी x1 मेरा आएगा इक्वल टू 18 के बराबर। जब मेरा x1 18 के बराबर आएगा मैं क्या करूंगा, फिर से मैं अब x2 को निकालना है। x2 को मैं कैसे निकालूंगा, मैं सिंपली put the x1's value into any equation। फर्स्ट और सेकंड जो मेरी इक्वेशन, इन दो में से किसी में भी मैं डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट में डालेंगे ट्वाइस x1 प्लस 3 टाइम्स x2 will be equal to 60। that means 2 into x1 तो निकला है 18 के बराबर प्लस 3 टाइम्स x2 इक्वल टू 60। 2 into 18 किसके बराबर हुआ, 36 प्लस 3 टाइम्स x2 विल बी इक्वल टू 60। दैट मीन्स अगर इसको यहां पे ले जाऊंगा 3 टाइम्स x2 विल बी इक्वल टू 60 माइनस 36, तो वो किसके बराबर, दैट मीन्स 3 टाइम्स x2 विल बी इक्वल टू 60 माइनस 36 विल बी इक्वल टू 24, x2 विल बी इक्वल टू 8। जब इसको डिवाइड करूंगा तो 8, x2 विल बी इक्वल टू 8। नाउ जब मेरा x2 यहाँ पे किसके बराबर निकला, 8 के बराबर, अब मैं प्रॉफिट देखूंगा अपना कितना आया यहाँ से, दैट विल बी इक्वल टू 40 into 18 प्लस 35 into 8, और वो किसके बराबर निकलेगा वो मेरा, वो विल बी इक्वल टू 1000। अगर आप देखोगे यहाँ पे कितना प्रॉफिट, 0, यहाँ पे 700, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 962, तो हाईएस्ट प्रॉफिट ये है, दिस इज मैक्सिमम। सो मेरा डिसीजन वेरिएबल एक्चुअली क्या है, मेरा डिसीजन वेरिएबल यही है कि मुझे फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ x1 और वैल्यू ऑफ x2। यही दो मेरे डिसीजन वेरिएबल्स है, और वो मुझे कितने निकले, x1 मेरा किसके बराबर निकला, 18 के बराबर, और x2 निकला 8। दैट मीन्स अगर मैं प्रोड्यूस करूंगा 18 यूनिट्स ऑफ x1 और 8 यूनिट्स ऑफ x2 तो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो ऐसे हमने इसको सॉल्व किया है। होप आप लोगों ने इसको समझा होगा। थैंक यू।